Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I can't believe I'm actually saying that. But ये जो पिछला साल गुजरा है इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं और मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें करी हैं जो मैंने सोचा था मैं पहले कभी नहीं करूँगी. One of them being starting my YouTube channel which I've just started very recently. जो एक पिछला साल गुजरा है उसमें हमने इतना कुछ देखा है as a community, as I think an entire the entire world has been together in all of this. And during this time already हमारा plan था और कोरोना की वजह से वो expedite हो गया और वो यही था कि हम अपने brand को जो नताशा सलोन एक इतने सालों से establish हुआ है, आप सब ने इतना support किया है, इतना प्यार दिया है, उसको we take it and we make it bigger, and make the conversation around our brand, our ethos bigger. We changed our ethos last year. We changed what we want to represent, and it was more of an add-on. We just didn't want to remain as a Natasha salon, and only that, because doing makeup is one thing that I do. मैं makeup करती हूँ, मैं makeup artist हूँ, पर वो मेरी personality का सिर्फ एक facet है. And I realized कि मेरे personalities के और भी बहुत facets हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ share करना चाहती हूँ. और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट ईयर भी हुई है और जनरली भी ओवर द इयर्स आहिस्ता आहिस्ता हुई है इज़ दैट आई लव कनेक्टिंग टू ऑल ऑफ यू इन अ वेरी रियल वे. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रियली वांटेड टू डू for my YouTube channel is start a conversation, and I want to call it Real Talk, which is what we are calling this little tete-a-tetes that I want to have with you guys. ये conversations hongi. I intend to have them about my personal experience over things, have conversations with other people. So a lot of that coming up inshallah. But I've always felt that it is very important to remain as real and raw with all of you. So alongside the glamour and the illusion, because जो हम करते हैं वो एक हद तक illusion ही है, हम जो create करते हैं, जो हम makeup करते हैं, it's make believe. पर अब सोशल मीडिया में alongside the make believe एक बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम ये भी बात करें कि रियलिटी क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, और हमारी रियलिटीज़ जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं उससे बहुत फ़र्क होती है हम सब की. डजेंट मैटर किसकी बात करें, वो चाहे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे एवरेज एक हाउस वाइफ है, एक इंस्टाग्राम की वर्किंग बिजनेस वुमन है, whoever that may be, an average Joe like me, also just a regular person, who does a certain amount of a social media or has a presence on social media, but also has a regular life, so to speak, or as we all do, no matter how big a celebrity you are or as big of as an influencer you are. तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, especially now as I feel with each year, to connect and to be able to say certain things on my platform, which has so many women following it for a variety of reasons, and the response to some of the conversations that I've started has been so amazing. मैं अपनी इंस्टा स्टोरीज पे करती हूँ almost हर weekend, कभी कभी once in 2 weeks, जहाँ हम question and people throw questions my way, and I've been sharing my experiences, and there has been such an amazing amount of women who've responded and said, oh my god, that's me, or that's how I also feel, or you should speak about this more often. या मेरी मास्टर क्लासेस में जब मैं अपनी लास्ट डे पे हम ये एक चीज़ करते हैं जो हम सब बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हम ये बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, आवर स्ट्रगल्स. तो उस दिन भी जब वो जो लास्ट डे होता है इज़ माई फेवरेट डे ऑफ माई मास्टर क्लास, बिकॉज आई फील उस दिन आई रियली गेट टू नो द स्टोरीज ऑफ द डिफरेंट women in class with me. So even in that, a lot of women have said over the topics that we speak about, कि please put this on your social media channel. So the first thing the topic that I really wanted to speak about, and when I touched upon it, जब मैंने अपने Instagram पे ये लिखा, और मैं ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में I keep going to English, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में सबसे ज़्यादा बात करूँ कि सब समझ सकें, क्योंकि हमारी ऑडियंस प्रेडोमिनेटली उर्दू है, दिस इज़ आ मादरी ज़बान है, हमारी मदर टंग है, तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं आई कीप स्प्रिंगिंग बैक एंड फोर्थ. पर मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट
टॉपिक आज मैं बात करना चाह रही हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टा स्टोरीज पे रेगुलरली थोड़ा सा मैंने अपने 2020 रिकैप में भी इसके बारे में बात की थी, वॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन एक ऐसी बात है जो मैंने पहले भी अपने प्लेटफॉर्म पे की है। आई हैव ऑलवेज बिन समवन हु हैज़ सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। इट डजंट मेक मी स्पेशल। आजकल के दौर में अब जिस तरह हमारी ज़िंदगियां हैं, जो हमारे सोशल प्रेशर्स हैं, सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। उनको बाउट्स हो सकते हैं, उनको एक लाइफ लॉन्ग एक बैटल हो सकती है। डिफरेंट वैरायटी है डिप्रेशन में भी, ये नहीं कि एक ही तरीके की होती है, फ़र्क किस्म की होती हैं। और जो एक तरह की और डिप्रेशन होती है जो एक्सक्लूसिवली तब होती है जब आपका यू गिव बर्थ, आप बच्चा पैदा कर लेते हैं, उसके बाद जो एक डिप्रेशन होती है उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। अगर वो अनट्रीटेड रह जाए और उसके बारे में बात ना की जाए और उसको ट्रीट ना ठीक तरीके से किया जाए, कभी कभी वो पोस्टपार्टम साइकोसिस भी बन सकती है, विच इज़ अ मोर डेंजरस heightened version of postpartum depression. अब हमारी सोसाइटी में अगर आप डिप्रेशन की बात करते हैं, या जब भी मैंने ये बात छेड़ी है, सो मेनी पीपल, और हमारी स्पेशली वैसे भी आई थिंक सोसाइटी में टैबू है और हमारी यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा टैबू है। तो जब आप डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं या आप बात करते हैं कि आई डोंट फील टू गुड, या मेरा दिल घट रहा है, या मुझे पता नहीं क्यों सब ठीक है पर समथिंग डजंट फील राइट, मुझे किसी वजह से थोड़ी सी रोना आ रहा है, या मैं कुछ बैठी होती हूँ और मैं बिल्कुल लॉस्ट हो जाती हूँ, आई हैव सो मच सैडनेस एक्सेट्रा, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों है, कोई एक्सटर्नल रीज़न नहीं है, बट आई फील दिस वे। यूजली हमारे यहाँ जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो ये आते हैं कि तुम नाशुक्री हो, अल्लाह का शुक्र करो, बस नफल पढ़ो, अल्लाह से बस कॉन्स्टेंटली शुक्र किया करो। वो देखो बाहर कितना अनरेस्ट है, कितनी मुसीबतें हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लोगों को पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। शुक्र करना या ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर ये इसका जवाब नहीं है। बिकॉज जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो एक आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन की भी वजह से भी होती है, हार्मोनल रिएक्शन की भी वजह से होती है, एक बहुत कॉम्बिनेशन होती है जिसकी वजह से आपको ये डिप्रेशन होती है। तो जस्ट सेइंग कि जस्ट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, जो हमारा जनरल एक एटीट्यूड है आई थिंक सोसाइटी में, स्पेशली विद मेंटल हेल्थ, इज कि बस इसको छुपा दो, या इसके बारे में बात मत करो, या इस पर आप मिट्टी डाल दो, इसको बस कोने में छुपा दो और तुम बात मत करना और तुम हंसते रहना। जो इस चाहे वो रेगुलर डिप्रेशन हो, चाहे वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो, इट एक्चुअली मेक्स इट वर्स। इसकी वजह से ये और भी बदतर हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो आपका फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है आप पे, जो आई पर्सनली फील, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू इट, and I also have been through just regularly just generally feeling depression. Postpartum depression was like feeling helplessness and loss and this sadness that I cannot explain. So initially what happened, and I'm going to take you guys through it because a lot of women had messaged once I mentioned कि it's something that happened with me. They mentioned कि आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं, आपने क्या किया या आपका प्रोसेस क्या था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और ये प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा जब आप इसके बारे में अपने, अगर इफ़ समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम इट, अगर आपको भी ये फीलिंग्स हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमेशा एक अच्छे थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट से मिलने के बाद आपको वो एक अच्छी गाइडलाइन भी दे सकते हैं। पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, और मेरा एक्सपीरियंस विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाज दैट इट इज़ crippling. So initially when I had my baby, already while going into the time when I was about to have her, एक तो मैं काम करी थी, मैं एक दिन पहले तक काम करी थी before I went to the hospital. So I kept myself busy throughout pregnancy. Mashallah, it was a good pregnancy. I didn't have any such trouble during the pregnancy. मगर last months के दौरान मेरी iron levels बहुत drop हो गए थे,
तो मुझे आयरन की ड्रिप्स भी लग रही थी. हमें जेनेटिकली भी हमारी पूरी फैमिली में एवरीबडी हैज़ हैड दैट, सो इट वाजंट समथिंग न्यू. बट एक तो मुझे आयरन की ड्रिप्स लग रही थी. सेकेंडली लास्ट मंथ में मेरा अपना भी वज़न गिर रहा था, और जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट थी वो कह रहे थे कि बेबी का भी जो AC था, अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, उनको लग रहा था कि बेबी भी शायद ज़रा is not as big as they wanted to. I don't know what the exact terminology here is, because I don't think a baby needs to be any said weight. But they were a little fearful कि baby maybe not as big, maybe smaller. There may be complications if I have a natural delivery. So my gynecologist suggested कि मेरा C-section होना चाहिए. तो एक तो सबसे पहले that made me a bit like, oh God, मेरा C-section होना चाहिए. तो वहाँ से मैं एक process बता रही हूँ जहाँ से anxiety शुरू होती है एक औरत के लिए. Because pregnancy में तो होती ही है anxiety, I feel, because you just constantly like अब मैं क्या करूँ अब. और एक तो सबके opinions भी होते हैं, एक आपकी अपनी body होती है. बट जिस तरह आप लेबर के पास जाते हो तो एक अलग एंग्जाइटी होती है. एक तो एंग्जाइटी के दर्द कितनी होगी या कैसे होगा, एंड सब ठीक हो जाए और बेबी ठीक होगा. तो मुझे भी वो सब एंग्जाइटीज़ थी. मुझे आई वॉज वेरी स्कैर्ड. और फिर ऑफ कोर्स द डे केम, इट वाज शेड्यूल्ड. आई न्यू कि इस दिन पे मेरा C-section होगा. दैट एक्सपीरियंस इन itself is also for everybody who talks about the fact कि having a C-section baby is any easier or sometimes look down upon it. It was also quite a scary experience, because I remember from the moment that I got prepared to be taken into the operation theatre, I already had so much anxiety. और जैसे ही आपका बेबी होता है उसके बाद आई फील कि आपको there's like a roller coaster of emotion. ठीक है. I remember getting out of the operation theatre and there were already people in my room. My baby was, the nurse had told me to start breastfeeding my baby. I was looking around. I just wanted to have a moment to breathe. I still remember, still makes me emotional, but I just remember being like, I just need a minute, I just need a minute. And I apparently don't have a minute, because the minute I got done, there was, I was, feeling a little, you still have medication in your body. You feel like, kind of cold, and I felt kind of warm, then I felt cold. I was just all over the place. Physically, आपके साथ इतना कुछ हो रहा होता है. Emotionally, इतना कुछ हो रहा होता है. Because it was like, oh God, the 9 months are over. Now I have the baby in front of me. Oh my God, now I have to take care of her. And I remember the minute she started crying. And it's now you realize that अब मुझे almost साल होने को आए, बच्चे रोते हैं, और slowly you realize कि you get accustomed to it. But I still remember the first time she started to really cry. I just remember being like, just make her stop crying, because उससे भी मुझे इतनी ज़्यादा anxiety हो रही थी. And I know I posted on social media कि I pretty much started feeling symptoms of intense depression within 3 days of my delivery. Around the time I was still in the hospital, मुझे बहुत ज़्यादा symptoms थे, और बहुत ज़्यादा मैं feel करी थी, to the point कि I just wanted to be like at night when everybody would go home and I had someone staying with me and baby, I used to just feel like, oh my God, especially the darkness at night, I was feeling like almost like I couldn't breathe. To the point कि मैंने I think third day they said I could stay for 3-4 days आराम से etc whatever, but I said I want to just go home. I insisted going home because I felt कि मुझे बहुत ज़्यादा depression feel हो रही थी. तो initially I was like, of course एक baby blues भी होते हैं, which are just general common, just feeling sadness, your hormones are balancing. So women do feel, I think some women do feel, I wouldn't want to generalize, I don't know everybody's experience. मैं आपसे अपने experience के बारे में आपसे share कर सकती हूँ. So I remember being there and being like, something is up with me, even, and because on an average I'm someone who feels or knows the symptoms of depression, I realized that this was a little more. So I remember feeling kind of hopeless, helpless, for almost, I would say, months after, especially the first 3, I would say about 5 months, but the first 3 months very intensely so. There was constant, like,
my heart would sink constantly, and I would constantly want to cry, and I did. I almost cried, I think, for a regular every day for 4 months. I wanted to fight with my husband, and my mom was living with us. I wanted to fight. I wanted to cry. I wanted to bawl. I remember feeling very protective towards Noor. मुझे याद है कि मुझे ये भी डर लगता था कि कोई इसको आके उसको ना हर्ट कर देगा, कोई इसको हर्ट कर देगा, या कोई उसकी कोई वो रात में सोएगी तो वो गलत तरफ सोएगी तो वो कुछ हो जाएगा, उसको सांस नहीं आएगा. And these are very normal feelings, because when I spoke to some of my friends and people around me, they were like, yeah, we used to do the same. Because I used to constantly check कि Noor की, is she breathing, initially. But वो थी anxiety in general. Like I said already, as an average person, I'm more anxious to begin with. So I think that kind of set the stage for me to feel all those symptoms. मेरे साथ जो एक blessing है वो ये है कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ. मैं इस चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकती थी. मैं जनरली भी बहुत वोकल हूँ, बहुत बोलती हूँ. मम्मी भी कहती हैं कि मेरी दोनों बेटियाँ माशाल्लाह बहुत बोलती हैं. But I'm vocal. I don't like to pretend like everything is okay, because it never really is for anyone. मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी ये encourage करती हूँ कि सबको, I hope and I pray and wish कि सब अपने सोशल मीडिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हों या पर्सनली भी हों. अगर आप किसी से मिलें, I wish people were more like, they were more true to what they were actually experiencing. I think half our depression in society and life would end if everybody just was more true to how they're feeling. So I don't want to pretend that I have it all together. I don't. I am still learning. And here, the reason to make this video was to be able to share my experience. First tell anyone who's out there who's experiencing this, किसी और को अगर ये सब feeling हो रही है, to tell them that you're not alone. This is completely normal. I feel I've been through it. So it really helped me when someone turned around and said they felt these things, or they could just speak to me. So here are some of the things that I have tried, and some of the things that have worked for me. First and foremost is to seek प्रोफेशनल हेल्प. हमारी सोसाइटी में थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से एक ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ स्टिग्मा अटैच्ड टू योर हेड कि ओ माय गॉड शी गोज टू अ थेरेपिस्ट, और ओ माय गॉड वो थेरेपिस्ट के पास जा रही है, साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रही है, इसका मतलब कि there's something wrong with her, और इट्स लुक डाउन अपॉन. इसको अच्छा नहीं माना जाता. इसको पता नहीं क्यों हम बुरा समझते हैं. ऑल्दो जब हमारे बॉडी में कुछ, जैसे हमारी फिजिकली कुछ अगर हमारे बारे में कुछ ख़राब हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और कोई सब कहते हैं अच्छी बात है, जाना चाहिए, राइट. अगर आपके टांग में दर्द है या सर में, नॉट नेसेसरी सर में दर्द है, पर कोई भी सिम्टम है जो आपको बहुत तंग कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो बेहतर हो जाए. मेंटली भी डॉक्टर्स हैं जो उसी तरीके से आपकी मदद करते हैं जैसे फिज़िकली आपको डॉक्टर्स मदद करते हैं. So for me, I already had a therapist. I seek counsel. I was speaking to someone. तो एक प्रोफेशनल से एडवाइस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू फील कि आपको बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा है, आपकी बेबी के साथ बॉन्डिंग में अफेक्ट कर रहा है, या बहुत पैरानोया है, एंग्जाइटी है, सैडनेस है. सो आई फील कि एक पॉइंट के बाद डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल की हेल्प लें. वो आपको इन सब फीलिंग्स के थ्रू दे कैन हेल्प यू वॉक थ्रू दम. आपको ये बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ ये कॉन्स्टेंटली कोई इंसान बात कर सकता है. आजकल आप जूम पे भी बात कर सकते हैं. फॉर एनीवन हु सेज के हम कैसे जाएंगे, हम कैसे बात करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आप जूम पे भी बात कर सकते हैं. ये आप वहाँ भी एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और कोई आपकी कॉन्स्टेंटली मदद कर सकता है जो इस अरीना में या इस टॉपिक पे नॉलेज रखता हो. सेकेंडली व्हाट हेल्प मी वाज कि मैंने अपने आप को आइसोलेट नहीं होने दिया. आई रियलाइज़ कि जब मैं अकेली थी तो मुझे ये फीलिंग्स और भी ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी. सो आई ट्राई टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल. शुरू में मैं अपनी खाला के पास जाके रही थी, जो मेरी खाला ने ऑलरेडी ऑफ़र किया था. और लॉट ऑफ टाइम्स लोग हमें हेल्प ऑफ़र कर रहे होते हैं पर हम मदद नहीं लेते, और हम ज़रा डर जाते हैं, और उसकी वजह से भी हम कभी कभी आई फील वी end up actually hurting our own selves. So मेरी खाला ने मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ही कह दिया था कि मैं उनके पास आके रहूँ. उनकी बेटी का ऑलरेडी अभी भी, मेरी कज़न का
मुझसे 4 महीने पहले बेबी हुआ था, तो उन्हें अभी पूरी एक प्रोसेस के थ्रू गए थे और उन्होंने मेरी बहुत मदद की, हाउ टू सेट अप फॉर द बेबी एक्सेट्रा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी मुझे बोला कि मैं उनके पास आके रहूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी, जो मेरी प्राइमरी केयर टेकर हैं, वो रात में वो जल्दी सो जाती हैं, जल्दी उठ जाती हैं, तो शी वुड बिन हार्ड फॉर हर। तो मेरी खाला ने कहा कि मेरे पास आके रहो और मैं मैं अभी पूरे प्रोसेस के थ्रू गई हूँ, तो मैं हेल्प करूँगी। तो मेरी दोनों खालाज ने लिटरली वो बिल्कुल मेरी मदद की तरह ही हैं और उन्हें मेरी अम्मी के साथ मेरी बहुत मदद की। पर मेरी खाला का घर बहुत भरा हुआ था, वो कॉन्स्टेंटली मुझे सराउंडेड रखते थे। मेरा अगर दिल बैठता था तो मैं बाहर जाके उनके सबके साथ बैठ जाती थी। वहाँ कोई ना कोई शोर शराबा, हम लोग बातें करते रहते थे। हम लोग, मेरी कज़न आ जाती थी, उसका बेबी आ जाता था। मेरी अम्मी की कज़न है गुड्डू खाला, वो भी आ जाती थी। तो मैंने ऑलरेडी ये एक इंतज़ाम कर लिया था कि इफ़ आई हैड स्टेड एट होम विद अली एंड ममा, अगर मैं सिर्फ अली और ममा के साथ रहती घर के अंदर, तो आई फील वो डिप्रेशन ज़्यादा कैच करती। तो आई फेल कि मैंने आइसोलेट नहीं होने दिया अपने आप को। मैंने अपने आप को एक ऐसी सेटिंग में रखा, स्पेशली पहले जो 6 वीक्स थे। और जब मैं अपने घर भी आ गई तो मैंने यही कंटिन्यू किया कि मैंने कॉन्स्टेंटली किसी को अपने पास रखा, अपने साथ रखा। अपने हस्बैंड को कहा कि थोड़ा सा, और ऑलरेडी नेचुरली एक ऐसी चीज़ हो गई थी, कोरोना हो गया, तो एवरीबडी स्टेड होम। तो मुझे मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट था, बिकॉज आई केप्ट टॉकिंग टू हिम एंड सेइंग आई कांट बी अलोन और आई नीड यू, कैन यू सिट विद मी एट नाइट। समटाइम्स रात में अगर मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, एक्चुअली रात में ऑलमोस्ट आई वुड से कि दिन से बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे वैसे भी रात के वक्त आई फील अंधेरा भी हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, तो इट्स अ सेटिंग फॉर यू टू फील मोर अपसेट और डिप्रेस्ड इफ़ यू फील डिप्रेस्ड। पर मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं रात में कभी कभी अगर ऐसी बहुत ज़्यादा सिंकिंग फीलिंग होती थी तो मैं हस्बैंड से बात कर लेती थी। अगर हस्बैंड सो रहे होते थे या बेबी के साथ सो रहे हैं तो मैं अपनी किसी दोस्त को फ़ोन कर लेती थी। सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू नॉट बी अलोन एंड कॉन्स्टेंटली स्पीक टू पीपल, सो दैट आई रिमेन्ड कॉन्स्टेंटली फेल्ट लाइक कि मेरे साथ सपोर्ट है, मैं किससे बात कर सकती हूँ, ये बहुत ज़रूरी था। जो सेकेंड चीज़ मुझे बहुत हेल्प की है रेगुलरली भी और पोस्टमार्टम में भी, वो है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज से आई फील आपके हैप्पी हार्मोन्स भी बिल्ड होते हैं बॉडी के अंदर। एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है कि इफ़ यू कैन वर्क आउट, ऑफ कोर्स इनिशियली विद द सी सेक्शन दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आई वाज you've just been cut up etc. I had a very good experience though with my C-section because within about I would say a week and a half I was doing and वो आपको ये सजेस्ट भी करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करें कि आप चलें फिरें, जितना आप करते हैं उतनी रिकवरी बेहतर होती है। समटाइम्स जस्ट लाइंग डाउन एंड नॉट मूविंग कैन एक्चुअली एड इन योर रिकवरी नॉट हैपनिंग फास्ट। तो वो मेरा एक और चीज़ है जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया। और शुरू में एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे तो हल्की सी लिटरली 5 मिनट की वॉक बाहर तक, और गार्डन के अंदर, पूल के पास या गार्डन के पास, नेचर के अंदर, जस्ट अगर और कुछ नहीं तो सड़क के ऊपर, आपके घर के बाहर हल्का सा सिर्फ बाहर जाके बैठना या चलना, फ्रेश एयर को ब्रीथ करना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत ये हेल्प किया। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मेरी बॉडी को डलाओ, फिर मैंने एक्सरसाइज थोड़ी सी ऐड करनी शुरू की, वॉक से शुरू की, फिर ब्रिस्क वॉक, फिर आप जैसे आपका डॉक्टर जब अलाउ करें आपके डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिकवरी का पीरियड क्या है, क्योंकि सबका बहुत डिफरेंट होता है, सबकी बॉडीज़ फ़र्क होती है। मैंने फिर और एक्सरसाइज शुरू की। तो मुझे एक्सरसाइज से हमेशा बहुत रिलीफ मिलती है बिकॉज आई फील कि वो केमिकली भी आपको बहुत हेल्प करता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है करना फॉर पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ एक्सरसाइज रियली हेल्प मी। द थर्ड थिंग दैट रियली हेल्प मी, जो मैं जनरली भी सबको सजेस्ट करती हूँ, इज़ टू मेडिटेट। ऑलराइट, अब मेडिटेट करना, आप बहुत सारी ऐप्स भी हैं जो आपको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू लेके जा सकती हैं। फॉर मी आई डू अ फ्यू थिंग्स। मैं तस्बीह करती हूँ, नमाज भी जो पढ़ते हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। तस्बीह करना भी, आई फील अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रही होती है, लॉट ऑफ द मेडिटेशन इज़ अबाउट योर ब्रेथ। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इज समटाइम्स व्हेन यू गो इनटू योर हेड, आप एक लूप पे जाते हैं, लूप 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 लूप, एंड यू विल ऑलमोस्ट नोटिस कि आपकी
even the pattern of your breath becomes very shallow. You're not going deeper and taking deep breaths, you're just remaining very very shallow. उससे भी एंग्जाइटी सिर्फ डीप ब्रेथ करने से, एक जगह बैठने से, थोड़े से गहरे सांस लेने से, थोड़ा सा अपने आप को सेंटर करने से भी बहुत फ़र्क पड़ा था और मुझे अभी भी बहुत फ़र्क पड़ता है. मैं ज़रा भागती हूँ मेडिटेशन से, उतना नहीं करती जितना करना चाहिए, पर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. सो आई फेल्ट दैट वाज अ ह्यूज पार्ट ऑफ मी फीलिंग बेटर एज वेल. अभी भी जब मुझे बहुत ओवरवेलमिंग कोई चीज़ लगती है या मुझे लगता है कि मैं अभी किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती, the first thing I try to do is first just take a few deep breaths. All right, very very important, has helped me tremendously through life and even through this time. Just taking that breath really it's helped me prior, before as well, and even during this time. To just take that breath, meditate a little bit, just center myself. It's very very important. और जो लोग मेडिटेशन छोड़ के चाहते हैं कि वो नमाज पढ़ें या तस्बीह पढ़ें, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी में नमाज ना पढ़ें फिर, या बहुत भाग भाग के बस फटाफट नफल पढ़ने की कोशिश ना करें. अगर आप नमाज भी मेडिटेशन की तरह पढ़ें तो उसमें भी एक सुकून मिलता है. ज़रा टाइम निकाल के आराम से इंजॉय करके अपनी नमाज पढ़ें, बिकॉज मेडिटेशन इज़ अबाउट जस्ट स्लोइंग डाउन. बिल्कुल स्लो डाउन करके थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 5 मिनट भी क्यों ना हो, अपने लिए टाइम निकालें, बहुत बहुत ज़रूरी है. और दैट ब्रिंग्स मी टू माई 4th पॉइंट, विच वॉज टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ. वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्स व्हेन वी बिकम मॉम्स इज़ के बस अब बेबी है और अब बेबी की ज़रूरत है और मेरी ज़रूरतें अब सेकेंडरी हैं और आई डील विद माई सेल्फ लेटर. द वन थिंग आई डिसाइडेड टू डू इज़ ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप एक बेहतर माँ बन सकेंगे, अपने बच्चे का भी बेहतर ख्याल रखेंगे. और उसी तरीके से अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बच्चे का भी ख्याल नहीं इतने अच्छे तरीके से रख सकेंगे, और आप ख़ुद भी एज अ मदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. बिकॉज हाउ कैन यू, जैसे हवाई जहाज़ में हमेशा कहते हैं पहले अपने आप को मास्क पहनाएं हंगामी हालात में, इफ़ आई एम सेइंग इट राइट, हंगामी हालात में पहले अपने आप को मास्क पहनाएं, फिर किसी और की मदद करें. क्योंकि अगर आपका मास्क नहीं होगा ऑन तो आप सांस नहीं ले सकेंगे, और फिर अगर किसी की मदद करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे. And that really is exactly how I feel in reality as well. You can't let yourself drown and then expect to save anyone else. So for me, taking out my me time was very important. और मेरे कोरोना था, सबको पता है कोविड था, तो मैंने कोई हेल्प नहीं रखी थी. It was mom, me and Ali. But मुझे फिर भी हेल्प थी because of course my husband and my mom were very hands on. पर मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ये 20 मिनट्स चाहिए सुबह और मुझे 20 मिनट्स चाहिए रात को, या जब बेबी सो जाती थी. शुरू में तो बहुत कम सोते हैं because every 2.5-3 hours baby keeps waking up. But I would take out that little time to do something, even if it was taking a shower, सिर्फ नहाना, या अपने बाल धो लेना, या अपने सर में खुद ही तेल लगा लेना, या थोड़ा सा किताब पढ़ लेना, थोड़ा सा अपने आप कोई शो देख लेना जो मुझे पसंद है. और आई रियली एन्जॉयड शुरू में ईटिंग व्हाट आई लाइक्ड. तो अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ वुमेन रन टुवर्ड्स इज कि बस अब बच्चा पैदा हुआ है और मैंने फटाफट अपने वज़न कम करना है. मैंने एक्चुअली प्रेगनेंसी में इतना वज़न नहीं गेन किया जितना मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद 6 मंथ्स में वज़न गेन किया. पर वो वज़न मैंने जंक भी खा के नहीं गेन किया. आई ब्रेस्ट फेड फॉर ऑलमोस्ट 9 months आफ्टर नूर वॉज बॉर्न, एंड आई रियली वॉन्टेड टू. अनदर थिंग दैट पीपल डोंट टेल यू इज़ personally for me, I feel having the baby and the first few months are way harder than the pregnancy. The pregnancy was a breeze. Pregnancy was easy. But when the baby happens, it's just like, oh my God, because you're not sleeping, आपको constantly craving होती है, आपने दूध भी पिलाना है, आपने बच्चे की चीज़ें भी करनी है, सारा दिन आप भागते हैं, तो you feel like eating. But I tried to eat really good food that I loved. मेरी अम्मी ने मुझे बहुत spoil किया, रोज़ मेरे लिए खाना बनाया, देसी घी में खाना बनता था, मेरी फेवरेट चीज़ें बनती थी, मैंने घर का खाना खाया, वज़न गेन हुआ, पर मैंने इसका स्ट्रेस नहीं लिया. तो एक और जो एनेक्डोट अदर देन द फैक्ट कि अपने लिए टाइम निकालें, इसके फजूल चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना आप लोगों ने. और इस तरह की चीज़ें कि तुमने वज़न क्यों नहीं कम किया, और बहुत सी नसीहतें जो हमें लोग देते हैं कि अभी तक तुमने ये नहीं किया, अभी तक तुमने वो नहीं किया, अभी तक
drown it out, like this is just noise. तो मैंने इसको अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दिया, बिकॉज मेरी अपनी जर्नी थी. मुझे पता था कि मुझे उस वक्त क्या ज़रूरी है, और उस वक्त मैंने अपना ख्याल रखा. चाहे वो वज़न कम करना हो या 10 और चीज़ें हो, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी. पर मुझे पता था कि मैंने पहले अपना ख्याल रखना है, तो मैंने अपने आप को इंडल्ज किया. मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छे खानों से अपने आप को इंडल्ज करूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अपनी शौकिया चीज़ें खाऊं और पीऊं. बस मैं अपने घर में बनवा के वो किया कि मैं चाह रही थी कि मैं बाहर का खाना ना खाऊं. एक तो कोरोना भी था, और सेकेंडली आई ऑल्सो फील दैट इज़ नॉट नेसेसरली हेल्दी, बिकॉज यू डोंट नो कि मीट क्या है, चिकन क्या है. अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स इन इवन मीट एंड चिकन एंड इवन फिश टुडे has, you don't know कि mercury कितनी है, etc. whatever. You want to make sure that your produce is organic, or that's what I like. कि मैं अच्छा organic देसी चिकन हमने बनाया, और हमने सब्जियां भी जितनी हम अपने पास के फार्म से या हमारे जानने वालों की ऐसी जगहें थी, वहाँ से हमने कोशिश की कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां लाएं, अच्छा प्रोड्यूस लाएं, अच्छे मैंने खाने बना के खाए. तो मैंने अपना इस तरह भी ख्याल रखा था, जो बहुत ज़रूरी है. Another particular thing that is very very important during this time is to be able to, for me, chase a goal. ठीक है. मेरा जो काम था लास्ट ईयर को, मुझे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि तुम बच्चे के साथ ये वीडियोस और काम किस तरह कर रही हो, तो किस तरह पॉसिबल है, aren't you going crazy? And I realized कि the reason why I was able to do those videos or any content that I've done even today, shooting even this video, I do a lot of silent videos for my Instagram and otherwise, because my baby is always around me, so it's very hard to take out time where I can do actually videos when I'm speaking. But I realized I took out the time because it was relief. I was chasing something other than being a mother, guys. So ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. कभी कभी हम माँ होने में अपने आप को ही बिल्कुल लूज़ कर देते हैं. जो करना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है, किसी पे ये जजमेंट नहीं है. पर आई फेल्ट कि टेकिंग दैट टाइम अवे फ्रॉम बीइंग नताशा द मदर टू बीइंग बैक टू नताशा द गर्ल और वुमन वॉज वेरी इम्पोर्टेंट. मुझे ये एक और चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में हम ज़्यादा बात नहीं करते, वो ये है कि हम जो एक लॉस ऑफ सेल्फ भी होता है माँ बनने के बाद होता है, और इसमें कोई नाशुक्री की बात नहीं है. अडोर माई बेबी. मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरा ये बच्चा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. पर मुझे पता है कि मैं इसको आइडेंटिफाई करती हूँ, और मैंने जब भी ये अपने प्लेटफॉर्म पे भी बोला है, बहुत लोगों ने इस बात से अग्री किया है. दे एक्चुअली हैव रीच्ड आउट एंड बीन लाइक, थैंक यू फॉर सेइंग दैट्स हाउ आई फेल्ट. And for me, I was like, wow, why don't we hear this more often? Why don't I hear the flip side as well? Because usually जब आप किसी से बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कितना खूबसूरत एहसास है और सब अच्छा होगा, and it's amazing and you must, and all of that is true as well. But I feel we don't hear the flip side of it enough. Okay, there is a lot of emotional adjustment. So postpartum तो था ही था, पर उसके अलावा जो एक लॉस ऑफ सेल्फ होता है, वो आई थिंक अगर आपको पोस्टपार्टम हो या ना भी हो, physically, emotionally, mentally, I'm still trying to get a handle on things, and my baby is about to turn 1, and I'm still trying to figure out, whoa, what happened? And I think it takes a way longer time than people express. लोग तो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, आपको लगता है बट वो तो 2 महीने में बिल्कुल वापस वैसे ही दिख रही थी और वैसे ही लग रही थी और वैसे ही सब ठीक था, और मेरे साथ क्या, what's wrong with me? And nothing to, again, no hate towards the women who do spring back very quickly, but again, for me that hasn't been true. I'm still trying to find myself. I don't feel like myself till today. I feel like a part of me has just been lost, and I'm trying to find her, and sometimes there's a lot of sadness because of that as well, that, oh God, like, will I ever feel like myself again? And you see, and hence I also feel कि कभी कभी जब हम अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस, अपने आप को बच्चों की वजह से बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं, तो आप अपने बच्चों को कहीं रिजेंट भी करना शुरू हो जाते हैं. शायद नॉट कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली यू फील लाइक maybe becoming a mother is why I couldn't do X, Y, Z. And I feel it's very important to chase something. You don't need to be a successful big business person. You don't need to be the president of a bank. I'm just saying chase a small thing. So it could be maybe
starting an Instagram account that you share your experiences on. It could be learning how to cook a few dishes. It could be learning how to paint. Something that you do. कोई ऐसी चीज़ आपको करनी चाहिए जो आपको अपने आप के पास वापस लेके जा सके. Something. And for me, that was working on the completely new revamping of my business. It was working on, Beyond Beauty Natasha. It was working on my tutorials. It was talking about my experience of motherhood. मैंने अपने motherhood के बारे में throughout बात की. I remember initially लोगों ने जब मैंने tutorials लगाने शुरू किए, a lot of women were like, oh my god, you've already lost the weight, और आप इतनी अच्छी लग रही हैं, और आपने वज़न भी कम कर दिया है, और ये आपने कैसे किया? And I was like, oh my god, wait, I'm adding to people feeling bad about themselves, because I was like, wait, वो तो मैं सिर्फ अपनी शक्ल दिखा रही होती हूँ और मैंने ठीक तरीके से शूट किया होता है, तो मैं तो एक्चुअली अपनी असल मैं भी लोगों को ये कन्विंस कर रही हूँ कि ये बहुत ही इमीडिएट है, जिस तरह आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, हाउ यू फील एंड हाउ यू लुक. And then I remember posting my pictures with my belly, because after a C-section, I think even after regular delivery, but C-section ke baad to definitely you have a quite a tummy. So I remember posting my pictures holding Noor, showing my belly, showing my entire body. I was without makeup. I was in like oil gel back hair, which is what I generally look like. And I shared that on social media again, and there was a huge response to it, because everyone will respond well to reality. Okay, हर कोई सच से आइडेंटिफाई करेगा और सच सुन के सिर्फ बेहतर ही फील करेगा, इसलिए अपना सच बोलना आई फील इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो आई फील कि जो मैंने अपनी ट्रूथ शेयर की, जो मैंने आप सबके साथ वीडियो शेयर की, DIYs, it was such an amazing, for me it was also in the middle of all that sadness, I realized that I found my own kind of happiness and I found purpose. मेरी अम्मी ने हमेशा हमें सिखाया, मैंने हमेशा उनको भी देखा, एक पर्पस, एक गोल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको इस तरह की कोई भी जो बी इट एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अदर एलिमेंट, जिस जनरली भी अगर आप ज़िंदगी में लॉस्ट फील करते हैं, तो आई फील कि हैविंग अ गोल और चेजिंग एन एम्बिशन, कोई भी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ कुछ करना, अपनी ज़िंदगी के साथ अपने आप को बॉडी को भी चलाते रहना, अपने दिमाग को भी चलाते रहना, ये आपको इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बी इट डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, व्हाटएवर, they keep you, give you the strength to be able to handle them better. Nothing cures anything completely. I think it's a combination of things, which is why I've given you guys a list of things that I did. तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आते ही आपको बिल्कुल ही क्योर कर देगी, पर आई डू फील कि ये पॉसिबिलिटी है अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें हों. एंड आई फील पर्पस एंड गोल और कोई चीज़ सीखना, कोई चीज़ करना, ये आपको ज़िंदा रखता है, ये आपको बीमारियों, फिज़िकल बीमारियों से, मेंटल बीमारियों से दूर रखता है, जब आपके अंदर कॉन्स्टेंटली जीने की, सीखने की और चलते रहने की चाह हो. एंड आई फील उसी तरीके से जब ये सब चीज़ें आप अपने आप से हटा लेते हैं, तो कोई अच्छे खासे इंसान को भी कॉन्स्टेंटली घर बैठ के या कुछ ना चेज़ करते हुए नेगेटिविटी आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है. आई फील वो that's something that can even happen because of circumstances. So I feel these things really, really helped me, and it, above everything, what helped me also was communication. So another thing that we don't do enough of, I feel, in our Desi households is talk, okay, to each other about issues, about big issues, small issues. हमारी फैमिली में हम सब बड़े बात करते हैं, और मैंने अपने हस्बैंड को भी मेरे हस्बैंड तो इसके बारे में मेरे साथ हंसते भी हैं, पर I like to communicate how I'm feeling. I was able to do that on my platform. The good thing about social media today is everybody can share how they're feeling, what they want to do, what they're creating. It's also a great positive medium. ये negative भी हो सकता है, तो उसकी negative side पे मत जाएं. Don't be keyboard warriors और दूसरों को hurtful comments लिखना या
it can also be a negative space. But the funny thing is, anyone who's being negative, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा अपने आप को ही तकलीफ दे रहे होते हैं. जिनके बारे में लिख रहे होते हैं उनको तो इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती. तो नेगेटिव साइड से दूर रह के अगर आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव साइड को एम्ब्रेस करें, तो ये इस तरह की जगह है जहाँ कम्युनिटीज़ भी फॉर्म हो सकती हैं, जहाँ एक सपोर्ट भी मिल सकती है. सो मैनी वुमेन have come out and supported me when I have spoken about things that I was having trouble with, be it weight gain, weight loss, be it postpartum depression, anxiety, depression, struggling with motherhood, struggling with being a woman, struggling with being anything and everything that I expressed. जो भी मैंने अपने Instagram पे शेयर किया, वहाँ लोगों ने मुझे आके इतनी खूबसूरत मैसेजेस लिखे. I was touched from women all over the world. Master classes में so many of my students reached out. I mean, we've cried literally every day end of every master class. Someone or the other has cried, or we've all cried, we've all shared. And that communication, that connection, we all desire connection. आजकल की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ टूट गई है और जिसकी वजह से आई फील अब डिप्रेशन एक बहुत रेगुलर चीज़ हो गई है, वो ये है कि हम पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं और सबसे ज़्यादा डिसकनेक्टेड भी हैं, क्योंकि हम अपने फ़ोन्स पे लगे रहते हैं और हम लोगों से इतना कनेक्टेड नहीं रहते. हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बैठ के उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहते. तो कनेक्शन एक दूसरे को सपोर्ट का जो एक एहसास होता है, एक कनेक्शन का एहसास होता है, ये ज़िंदा रहने के लिए, ये पॉजिटिव सोचने के लिए, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और कनेक्शन आई फील सोशल मीडिया पे अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो एक कनेक्शन भी बहुत सारे लोगों से हो सकती है. एंड दैट ट्रिमेंडसली हेल्प मी. So these were the things that I did that helped me. I'm still figuring things out. I'm not 100%. I don't think anyone can ever be 100% content or happy or whatever it is. I think ये transient चीज़ें ऊपर नीचे सब फील करते हैं. तो मेरे लिए भी अभी भी एक प्रोसेस है. This entire journey of motherhood, another layer to being a woman. ये भी इसने बहुत कुछ सिखाया और अभी भी सिखाएगी. I'm going to keep sharing with all of you. This is just content that we're putting out there. This is still trial and error. Everything that we're doing right now is trial and error. But we're doing it with a lot of heart, and we're doing it with a lot of love. And the hope is to create a platform. One of my biggest hopes, I used to always say, as much as I love makeup and glamour, etc., is to connect with women and be able to bring about positive change, to be able to share our stories, to be able to listen to all of you, to be able to share with all of you. So that is the hope. Going forth, I hope कि आप सब ने इससे अगर और कुछ नहीं तो सिर्फ ये महसूस किया हो कि आप अकेले नहीं हैं. और ये जो एक्सपीरियंस है जिसके बारे में मैंने आज बात की है, ये बहुत कॉमन है. और बांटने से, शेयर करने से आधा बोझ वैसे ही जनरली भी ख़त्म हो जाता है. एंड आई फील अ लॉट ऑफ टाइम सिर्फ बोलने से हमारी सोसाइटी में, आई फील लॉट ऑफ क्लासेस में, लाइक ऐसे जब औरतें शेयर करती हैं, हाफ ऑफ देम दे जस्ट फील बेटर बाय जस्ट सेइंग इट. आधी जो तकलीफ़ है वो सिर्फ आपको बात करने से ही ठीक हो जाती, बिकॉज हम में से इतने ज़्यादा लोग हैं जो वो भी नहीं करते, हम बात ही नहीं करते. तो आई थिंक बात करने से भी बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हेल्प मिलती है. So this was my little video on me sharing my experience with postpartum depression. We are going to be bringing a lot more content to you. Like I said, we're trying a lot of new things. Please tell us what you feel. Please like. I know this is what all you do. I never thought I'd be saying it as well. Please like, share, and subscribe. And most importantly, more importantly than even that, is please give us your thoughts on the content that we're bringing to you. What else would you like to see us bring to your platform? Bring to your your screens, the social media platforms.
we're doing alongside me. We're also running my mother's, mashallah, and now social media, and she is just shining like the star that she is. So please keep telling us what you want to see on our channel, and we shall be bringing you guys a lot of inshallah content. I'm still a new mom. मैं जिस तरह वक्त निकलता है, मैं दिल तो मेरा करता है कि मैं दिन में कोई 10 वीडियोस बना लूँ, और शायद अगर ये मैं 5 साल पहले करी होती तो शादी और बेबी से पहले तो हो सकता, पर बेबी के बाद ज़रा मुश्किल है. बट द आइडिया इज़ टू जस्ट कीप गोइंग. आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे कछुआ छोटा 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 स्टेप लेते हुए, इट्स बेटर in the longer run to be slow and steady. So I hope you guys enjoyed. Looking forward to seeing you guys soon. Bye bye.